नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की खास और बड़ी खबरें, लेकिन कुछ अहम खबरों पर हमारी रहेगी विशेष नजर। तो महंगाई के दौर में बढ़ोतरी चाहे छोटी क्यों ना हो, अगर आपकी जेब का भार बढ़ाने वाली हो तो ये किसी झटके से कम नहीं। आज आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा कर यह झटका दिया, लेकिन सवाल है महंगाई को काबू में पाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने से क्या बात बन पाएगी, क्योंकि मौजूदा ग्लोबल हालात में महंगाई दर पर तुरंत लगाम लगने वाली नहीं है। आम आदमी को सता रहे इन्हीं सवालों के साथ आज हम स्वदेश आर की शुरुआत करेंगे। 3 दिन चली एमपीसी की मीटिंग के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% का इजाफा किया। लगातार 5वीं बार हुए इस इजाफे के बाद रेपो रेट अब बढ़कर 6.25% हो गया है। इससे आपके होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन की ईएमआई बढ़ना तय है। यानी पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आपकी जेब पर एक और बोझ। क्या रेट बढ़ने से घरों की खरीदारी में आई तेजी में कमी आएगी? कोविड के बाद रफ्तार पकड़ रही रियल्टी सेक्टर को क्या फिर झटका लगेगा? इन तमाम सवालों के हर पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट होंगे और साथ ही आपको समझाएंगे आसान भाषा में कि आखिर इस बढ़ोतरी के मायने क्या है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को। The Monetary Policy Committee meeting met on 5th, 6th and 7th December. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. Now, I think this is one occasion where the market expectations and the decisions of the Monetary Policy Committee are by and large aligned. And there are several interpretations whether when the market expectation and the monetary policy decisions are aligned, whether they are, they have to be taken as a perfect monetary policy or otherwise, but that debate can happen some other time. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Let me now elaborate on the MPC's rationale behind these decisions relating to the policy rate and the stance of the monetary policy. Growth prospects across the world are dampening. Financial markets remain nervous and are characterized by high volatility and price swings. For the Indian economy, the outlook is supported by good progress of rabi sowing, sustained urban demand, improving rural demand, a pickup in manufacturing, rebound in services, and robust credit expansion. और इधर FY23 के लिए आरबीआई ने जीडीपी टारगेट को 7% से घटाकर 6.8% किया है। वहीं इसके साथ ही अगले 12 महीने तक महंगाई दर 4% के ऊपर रहने का अनुमान जताया गया है। 2022-23 is projected at 6.8% with the Q3 at 4.4% and Q4 at 4.2%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth is projected at 7.1% in the first quarter of next financial year, that is 23-24, and 5.9% in the second quarter of the next financial year. The inflation trajectory has largely evolved in line with the outlook given by us in the month of June, that is in the June 2022 policy. Going forward, food inflation is likely to moderate with the usual winter softening and the likelihood of a bountiful rabi harvest, but pressure points remain in the form of prices of cereals, milk and spices, in the prices of cereals, milk and spices in the near term. The main risk is that core inflation, that is CPI excluding food and fuel, remains sticky and elevated. Overall, CPI price momentum remains high.
Risks from adverse weather events add uncertainty to the outlook. और ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूर-मत का आरबीआई की पॉलिसी को लेकर क्या विश्लेषण है, आपको सुनवाते हैं। आज सुबह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ने एमपीसी के रेजोल्यूशन के बारे में चर्चा किया, उन्होंने ये बोला कि अभी भी इन्फ्लेशन के बारे में वो बहुत चिंताजनक है। बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट वन एज येट, इज नॉट ओवर इज येट, ये थे उनके शब्द। लेकिन उन्होंने ग्रोथ का एस्टिमेट जो था पहले 7% था, 7% था, अभी उन्होंने 6.8% कर दिया है। साथ के साथ इन्फ्लेशन का जो उनका एस्टिमेट था वो 6.7% पे ही रहा। तो क्लियरली आरबीआई को ग्रोथ के बारे में चिंता है कि उन्होंने उसको कम कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन के बारे में हमको ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इसलिए उन्होंने रेपो रेट हाइक किया। लेकिन पहले जो 50 बेसिस पॉइंट से हाइक करते थे, पिछले 3 मीटिंग्स में 50 बेसिस पॉइंट से हाइक करते थे, इस बार 35 बेसिस पॉइंट से ही हाइक किया है। तो इसका मतलब आरबीआई शायद सोच रहा है कि स्लोली ये जो उनका रेपो रेट हाइक है उसका टाइम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इंडिया अलोन बाकी सब देशों के मुताबिक हमारे देश में इन्फ्लेशन भी कम होता जाएगा और ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा। ये थोड़ा सा सिनेरियो है। गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे, बोथ ऑन ग्रोथ फ्रंट, इन्फ्लेशन फ्रंट एंड ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट। देखते हैं कि गवर्नर का कॉन्फिडेंस जो है, ऑप्टिमिज्म जो है, वो वारंटेड है कि नहीं। बढ़ते हैं आगे और चलिए अब आपको बताते हैं इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना महंगा हुआ होम लोन। हमारे सहयोगी अनुराग शाह इस अंतर को आपको बारीक डिटेल्स के साथ समझाएंगे। अनुराग, बताएं कैसे आरबीआई के फैसले का हमारी जो होम लोन की दरें हैं और उनकी ईएमआई है उस पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो होम लोन की दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। सबसे पहले 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद 3 बार 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई और अब 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, यानी 2.25%, 225 बेसिस पॉइंट जो है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका असर जो है लोगों के होम लोन पर भी आया है। तो पहले जो आप ईएमआई देते थे उससे ईएमआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपकी ईएमआई नहीं बढ़ी है तो वहाँ पर इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा कट रहा है और आपका टेन्योर बढ़ गया है। तो हम आपको एक कैलकुलेशन किया गया है, 50 लाख का होम लोन है, अगर 20 साल के लिए लिया गया है तो जनवरी 2022 में जो आपकी ईएमआई आती थी 38,000 रुपये, वो बढ़कर अब 44,986 रुपये हो गई। मतलब 7,000 रुपये आपकी ईएमआई पूरी बढ़ गई है। अगर पूरे ब्याज की गणना करें कि आप जो 20 साल के टेन्योर में जो आप ब्याज देते थे वो पूरा ब्याज बनता था 41 लाख रुपए, जो अब बढ़कर हो गया है करीब 58 लाख रुपए, यानी 16,72,000 रुपए जो ब्याज है वो आपका बढ़ गया है। तो ये बदलाव आया है। 2.25% जो है ब्याज दरें बढ़ गई है इस वित्त वर्ष के अंदर। तो जनवरी से लेके अभी ये दिसंबर तक हम देखें तो जब जनवरी में ब्याज दर थी 6.75% यानी 6.25%, और अब वो ब्याज दर हो गई 2.25% बढ़ के 9% पे। तो ईएमआई आपका पूरा 7,000 रुपए के करीब बढ़ गया है। तो इसमें ग्राहकों को बैंक जो है 2 विकल्प देता है, या तो आप अपनी ईएमआई को बढ़वा लीजिए। ईएमआई अगर आप नहीं बढ़वाना चाहते हैं, ईएमआई का जो वैल्यू है वो उतना ही रखना चाहते हैं, तो फिर आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है वो बारीक डिटेल्स हैं जो आज के फैसले का आपके जो होम लोन की ईएमआई है, आपके जो ब्याज दरें हैं बढ़ने, उसका असर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग इस खास जानकारी के लिए। और चलिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटेल एसेट्स एंड कार्ड्स के कंट्री हेड चित्रभानु जी। चित्रभानु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और आज आरबीआई ने रेपो रेट में फिर इजाफा कर दिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया और किस तरह से देखते हैं इसे? वेल सर, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। तो हम तो 30-35 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट इंक्रीज को एक्सपेक्ट ही कर रहे थे लास्ट 2 मंथ्स से, बिकॉज़ आरबीआई बोल रहे थे कि आई मीन ऐसे ही बात ही था दैट दे वर एक्सपेक्टिंग दिस रेपो रेट टू इंक्रीज। सो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक इट इज समथिंग ऑफ अ शॉक फॉर अस। कोई ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि आई थिंक एवरीबडी, बैंक्स और सभी को लग रहे थे कि ये रेपो रेट इंक्रीज होगा। 30-35 पॉइंट्स वाज समथिंग व्हिच वी एक्सपेक्टेड। सो ऐसे कोई शॉक नहीं हमारे।
ठीक है चित्रभानु जी, आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां हमें रुकना होगा। लिए चलते अपने दर्शकों को मुंबई के ताज लैंड्स होटल में, जहां लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स का 10वां सीजन चल रहा है। आपको सीधा इस अवार्ड शो में लिए चलते हैं, जहां स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जा रहा है। So much, sir. Yeah, thank you so much. Now, ladies and gentlemen, according to the 2022 Vision Document 2.0, which I obviously read front to back and back to front, but you're not allowed to ask me any questions about it, please. India is set to reach 300 billion worth of electronic manufacturing and exports by 2026. This includes product segments such as mobile phones, IT hardware, consumer electronics, wearables, hearables, LED lighting, electronic components in electric vehicles, among others. Let's take a look at the nominations in the electrical and electronics category. In the category Electrical and Electronics, the nominees are GVR Technolabs, Hydrotech Solutions, Surya Logics, and the winner is Hydrotech Solutions. Congratulations. I'd like to invite on stage CEO and co-founder of Hydrotech Solutions, Naveen Gupta. Thank you so much, sir. Congratulations once again. Now, the value of food and beverage packaging market in India is anticipated to reach 156.25 billion by 2026. A noteworthy change in the eating habits of consumers and customers has led to the increase in the use of packaged food and beverages, which has in turn attracted a lot more companies to set up businesses in this sector. Here's a quick look at the nominations in the packaged foods and beverages category. Take a look. In the category Packaged Foods and Beverages, the nominees are Kamat's R Times Ice Creams, Naturals, Manishankar Oils, Mega Moda. And the winner is Kamat's R Time Ice Creams, Naturals. Congratulations. I'd like to invite on stage director Kamat's R Times Ice Creams Naturals, Srinivas Kamath, to receive this wonderfully amazing award, which is so well deserved. Congratulations. तो आप देख रहे थे लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स की खास झलकियां। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चित्रभानु जी लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरह से रेपो रेट में इजाफा हो रहा है, इसे अगर हम आम आदमी, आम कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो उसकी ईएमआई पर कितना बोझ पड़ रहा है? या तो स्पेसिफिकली देखें इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग लोन या जो बैंक्स का जो भी हाउसिंग लोन सब दे रहे हैं हम लोग, तो 1.90% का इंक्रीज हुआ है। सो उसमें तो ईएमआई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं सभी कस्टमर्स को। तो हम मैनेज कर रहे हैं टू वेज। वन तो द एंटायर उनका जो भी कस्टमर्स को पॉसिबल है, जो हाउसिंग लोन 30 इयर्स के लिए दे रहे हैं, सम कस्टमर्स हैव टेकन फॉर 25 इयर्स। सो सच कस्टमर्स को हम क्या करते हैं कि एक्सटेंड कर लेते हैं हाउसिंग लोन, तो उनका ईएमआई बर्डन थोड़ा कम रखते हैं। सो फॉर दोज कस्टमर्स जिसको वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उनका एज का कोई इश्यूज होगा या 30 इयर्स का लोन लिया होगा, उनके लिए तो कोई और ऑप्शन नहीं है, ईएमआई इंक्रीज करना ही पड़ेगा। सो थोड़ा तो बर्डन होगा ही बिकॉज ऑफ दिस चेंज। बट आप देख लेंगे तो लास्ट आप 10 साल में देखेंगे तो ना, तो पहले तो इंटरेस्ट रेट यही लेवल में रहा था एंड इट केम डाउन। इसीलिए कस्टमर्स को लग रहा है अभी कि ये इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा तो डिफिकल्टी होगा, बट आई थिंक पीपल विल गेट यूज्ड टू इट थोड़ा टाइम के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों ने घर खरीदने पर फोकस किया और एक अहमियत जो है, प्रायोरिटीज़ चेंज हुई, बहुत सी छूट भी उन्हें इस दौरान मिली। लेकिन अब कंज्यूमर के नज़रिए से देखें तो क्या ये बढ़ते रेट्स दबाव तो नहीं बन रहे?
दबाव तो आएगा। तो दो पार्ट है इसमें, एक तो एक्सिस्टिंग कस्टमर्स जिसने हाउसिंग लोन लिया है, ऑटो लोन्स लिया है, उनके लिए तो ऑटोमेटिकली दबाव आएगा ही। ऑटोमेटिकली उनका ईएमआई बढ़ेगा, उनका सेविंग्स थोड़ा और कंट्रोल करना पड़ेगा, वो सब तो प्रॉब्लम होगा ही। एंड यू लुक एट न्यू कस्टमर्स, जो नया कस्टमर्स होगा उनके लिए तो वो थोड़ा केयरफुल होगा ही। जो कस्टमर्स के लिए नेसेसिटी है, जिसको हाउसिंग लोन की जरूरत है, वो लोग तो लेगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट जितना कम ले सकते हैं लोन्स वो तो कंट्रोल करके लेंगे। वो बिल्डर्स जो ये इकोसिस्टम में जो बिल्डर्स होगा उनसे जो डिस्काउंट्स मिल सकते हैं वो भी ले लेंगे कस्टमर्स। सो ये सब लेके थोड़ा कुछ मैनेज करेंगे। बट जिसको नेसेसिटी है फॉर अ हाउसिंग लोन, एक घर लेने के लिए, वो तो लेगा ही। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हाउसिंग लोन सब लेते हैं, वो लोग थोड़ा मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट करेंगे और बाद में ही लेंगे। आई मीन आफ्टर सीइंग कैसे लग रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसे हाइक हो रहा है, फ्यूचर में कैसे होगा, वो सब देख के ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ट्रेंड ये भी देखा गया है सर कि जब से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए हैं उसके बाद से घर खरीदारों की संख्या जो है उस पर भी फर्क पड़ रहा है। क्या सोच रहा है दरअसल कंज्यूमर? तो वही है ना, अभी तो ओवरऑल मार्केट में या पहले जो कोविड के टाइम में किसी का परचेस हुआ नहीं, उसके बाद अभी तो बिल्डर्स भी बहुत एक्टिव है, जो भी चैनल पार्टनर्स है वो लोग भी ज्यादा एक्टिव है अभी। और लोगों को लग रहा है कि अभी तो थोड़ा दिन के लिए एक घर खरीद के रखूं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल तो रह रहे थे, दे वर लिविंग इन रेंटेड प्रीमाइसेस एक्सेट्रा। अभी तो लग रहा है कि दे रिक्वायर देयर ओन स्पेस, थोड़ा बड़ा घर चाहिए। सो इसीलिए लोग तो खरीदते ही रहे, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट। पास था वो सब लेके वो खरीद रहे हैं। सो इसीलिए डिमांड द लास्ट 1 year हैज बीन हायर। जो आप बोल रहे थे, डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गया अभी। सो बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 5-6 months पीपल विल वॉच अ लिटिल बिट मोर। मालूम नहीं है अभी, ये दिवाली और ये सीजन सब खत्म हो गया, तो इसीलिए अभी मालूम नहीं है कैसे होगा, पैन होगा। बट इन द लास्ट 1 year ये 1.90% और 190 basis point जो इंक्रीज हुआ है, उसे ज्यादा इम्पैक्ट डिमांड में हुआ नहीं। बट आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट का भी एक्सपेक्टेशन वही है, थोड़ा कुछ तो कम करना है। ये ओवरऑल परचेस पावर सब कम करने के लिए वो लोग कर रहे हैं। सो देयर विल सम इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट तो होगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसी में मैं अपनी बात जोड़ रहा हूं, और इस तरह के कदम भले ही इकॉनमी की टाइटनिंग के लिए आवश्यक हो जाते हैं, लेकिन जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये खतरा बना रहता है या ये डर आशंका बनी रहती है कि इससे डिमांड किल हो सकती है? या डिमांड ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होगा, बट उसके लिए बाकी मैं जो पहले बोल रहा था कि इकोसिस्टम में और भी बहुत सारे प्लेयर्स है इसमें, क्योंकि बिल्डर्स भी है। लॉट ऑफ बिल्डर्स आर नाउ एक्टिव। वो आप देखेंगे कि बड़ा बिल्डर्स लोग है ना, वो सब बहुत एक्टिव हो गया मार्केट में। नॉट ओनली इन मुंबई, सभी जगह पे आप देखेंगे, बॉम्बे देखेंगे या दिल्ली देखेंगे या बैंगलोर देखेंगे, सभी जगह पे अभी बिल्डर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और वो लोग थोड़ा कुछ डिस्काउंट्स दे देंगे टू मेक अप फॉर दिस। सो तो जो जेन्युइन बायर्स है ना, वो लोग तो खरीदेगा ही। डिमांड में थोड़ा तो कमी होगा ही, बट देखना पड़ेगा अभी नेक्स्ट 3 months कैसे होगा, देखना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चित्रभानु जी हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर खास विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं आगे। रेपो रेट को लेकर तमाम शंकाओं और सवालों के बीच गवर्नर शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट के इजाफे का दौर खत्म हो गया है। ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता अंकुर मिश्रा के सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। Sir, you have mentioned that the worst of inflation is behind us, and speaking completely on data, like crude, you have assumed it to be over 100, which is around 80 now. So, if worst of inflation is behind us, is the rate hikes which has been done till now, most of it is also behind us? If things pan out as we have projected, then the rates of 50 basis points consecutive increases are over. But we cannot take our shoe off the brake, because inflation is still averaging 5 to 5.4 next year. So we must guide it to a place where it remains stable at those ranges and then move on to 4. Till then, we must be, on our toes. That's the thing. Another question on the widening gap of credit growth and deposit growth. That is something which has been a concerning factor for banks. Has there been any communication with banks so far? Is there any direction which RBI has given? If you can update on that. No, RBI doesn't give any direction to the banks with regard to their interest rates on either side, whether credit or
on the deposit side. The credit growth and the deposit growth have to be seen in the proper perspective. The credit growth is on a low base. The deposit growth is on a high base. That is why it appears the divergence between the two, they look to be so divergent. During the whole period of pandemic, or even last year, the credit growth there was hardly any credit growth. It was about 5%, 6% or so, low base. But deposit growth had picked up in the first 2 years of the pandemic. So whatever is now happening based on the deposit side, the growth is, has to be seen in the context of the base effect. Now banks do their asset liability management, and depending on their funds requirement, depending on their own asset liability management, the ALM, depending on their ALM assessment, they will take necessary action both on the credit side as well as in the deposit side. We keep meeting the bank. I can understand from where your question comes, because I had a recent meeting with the bank executive. That is nothing to do with the interest rates, because that is deregulated. That meeting is to take stock of the overall banking sector, where it stands, what are the challenges, what are the possible risks. It was broadly an assessment of the overall banking sector and what is the outlook. And we need to hear from the banks also what is their assessment. While we keep on making our assessment, but we would always like to hear what is the assessment of the banks. के पास था वो सब लेके वो खरीद रहे हैं. सो इसीलिए डिमांड इन द लास्ट 1 year हैज बीन हायर. जो आप बोल रहे थे, डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गया अभी. सो बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 5-6 months पीपल विल वॉच अ लिटिल बिट मोर. मालूम नहीं है अभी ये दिवाली और ये सीजन सब खत्म हो गया, तो इसीलिए अभी मालूम नहीं है कैसे होगा, पैन होगा. बट इन द लास्ट 1 year ये 1.90% और 190 basis point जो इंक्रीज हुआ है, उसे ज्यादा इम्पैक्ट डिमांड में हुआ नहीं. बट आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट का भी एक्सपेक्टेशन वही है, थोड़ा कुछ तो कम करना है. ये ओवरऑल परचेज पावर सब कम करने के लिए वो लोग कर रहे हैं. सो देयर विल सम इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट तो होगा ही रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हालांकि इसी में मैं अपनी बात जोड़ रहा हूं, और इस तरह के कदम भले ही इकॉनमी की टाइटनिंग के लिए आवश्यक हो जाते हैं, लेकिन जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये खतरा बना रहता है या ये डर आशंका बनी रहती है कि इससे डिमांड किल हो सकती है? या डिमांड ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होगा, बट उसके लिए बाकी मैं जो पहले बोल रहा था कि इकोसिस्टम में और भी बहुत सारे प्लेयर्स है इसमें, क्योंकि बिल्डर्स भी है. लॉट ऑफ बिल्डर्स आर नाउ एक्टिव. वो आप देखेंगे कि बड़ा बिल्डर्स लोग है ना, वो सब बहुत एक्टिव हो गया मार्केट में. नॉट ओनली इन मुंबई, सभी जगह पे आप देखेंगे, बॉम्बे देखेंगे या दिल्ली देखेंगे या बैंगलोर देखेंगे, सभी जगह पे अभी बिल्डर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और वो लोग थोड़ा कुछ डिस्काउंट्स दे देंगे टू मेक अप फॉर दिस. सो जो जेन्युइन बायर्स है ना, वो लोग तो खरीदेगा ही. डिमांड में थोड़ा तो कमी होगा ही, बट देखना पड़ेगा अभी नेक्स्ट 3 months कैसे होगा, देखना ही पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चित्र भानु जी हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर खास विश्लेषण के लिए. बढ़ते हैं आगे. रेपो रेट को लेकर तमाम शंकाओं और सवालों के बीच गवर्नर शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट के इजाफे का दौर खत्म हो गया है. ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता अंकुर मिश्रा के सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं. Sir, you have mentioned that the worst of inflation is behind us, and speaking completely on data, like crude, you have assumed it to be over 100, which is around 80 now. So if worst of inflation is behind us, is the rate hikes which has been done till now, most of it is also behind us? If things pan out as we have projected, then the rates of 50 basis points consecutive increases are over. But we cannot take our shoe off the brake, because inflation is still averaging 5 to 5.4 next year. So we must guide it to a place where it remains stable at those ranges and then move on to 4. Till then, we must be, on our toes. That's the thing. Sir, another question on the widening gap of credit growth and deposit growth. That is something which has been a concerning factor for banks. Has there been any communication with banks so far? Is there any direction which RBI has given? If you can update on that. No, RBI doesn't give any direction to the banks with regard to their interest rates.
on either side, whether credit or on the deposit side. The credit growth and the deposit growth have to be seen in the proper perspective. The credit growth is on a low base. The deposit growth is on a high base. That is why it appears the divergence between the two, they look to be so divergent. During the whole period of pandemic, or even last year, the credit growth there was hardly any credit growth. It was about 5%, 6% or so, low base. But deposit growth had picked up in the first 2 years of the pandemic. So whatever is now happening based on the deposit side, the growth is, has to be seen in the context of the base effect. Now, banks do their asset liability management, and depending on their funds requirement, depending on their own asset liability management, the ALM, depending on their ALM assessment, they will take necessary action both on the credit side as well as in the deposit side. We keep meeting the bank. I can understand from where your question comes, because I had a recent meeting with the bank executive. That is nothing to do with the interest rates, because that is deregulated. That meeting is to take stock of the overall banking sector, where it stands, what are the challenges, what are the possible risks. It was broadly an assessment of the overall banking sector and what is the outlook. And we need to hear from the banks also what is their assessment. While we keep on making our assessment, but we would always like to hear what is the assessment of the banks. के CFO वेंकट रमन वेंकटेश्वरन ने हमसे खास बातचीत में कहा कि आगे दरों में और बढ़ोतरी की संभावना है। ये सिचुएशन है कि ग्रोथ थोड़ा कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है. So unless lot of factors come into play and the global uncertainty जो है वो चले न जाए, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन तो और थोड़ा लंबा, it's sticky, it will continue for some more time. और रेट हाइक का भी अभी जो market has priced in probably 1 or 2 more hikes. How much of it is anybody's guess, but मेरे ख्याल से रेट हाइक का अभी खत्म नहीं हुआ. और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर जे&के बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने हमसे खास बातचीत की और कहा कि दरों में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अनुमान के मुताबिक है. उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में फसल अच्छी होने से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करता हूं, क्योंकि वो मेरा होम स्टेट पड़ेगा, तो इस बार जो इकोनॉमिक ग्रोथ जम्मू कश्मीर में बिकॉज ऑफ द टूरिज्म और इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो हुआ है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है. और इस बार जो टूरिस्ट हैं वो इवन ऑलरेडी जो विंटर सीजन के लिए भी उसमें बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है. सो ओवरऑल इकोनॉमी में काफी सुधार होने की उम्मीद है. और जो रेपो रेट आज आरबीआई ने इंक्रीज किया है 35 बेसिस पॉइंट, ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड था और मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ था. तो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस रिटेन किया है रिजर्व बैंक ने. एंड मुझे लगता है कि लिक्विडिटी जिस हिसाब से बैंकों में है, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, तो इससे ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. और हमारा जो स्टेट है या हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, that is driven mainly by the rural growth. और इस बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है और हमें ऐसा उम्मीद है कि ये ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. बढ़ते आगे, 31 मार्च से निफ्टी इंडेक्स में बदलाव होंगे. कौन से शेयर इंडेक्स में एंट्री लेंगे और कौन से शेयर बाहर होंगे, जानते हैं हमारे सहयोगी स्वामित सरकार से. तो पहले तो अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ डेट होगा इन चेंजेस का वो है 31 मार्च. मतलब तब का जो मार्केट कैप है उसके बेसिस पे ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होगा और ये अनाउंसमेंट हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी 2023 में और इफेक्टिव डेट 31 मार्च 2023 का रहेगा. अब नोवामा रिसर्च के हिसाब से निफ्टी में तो वो कोई बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन, ये 3 स्टॉक्स अगर एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो निफ्टी में भी इंक्लूड हो सकते
सकते हैं आगे चलते। निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर हम बात करें तो उसमें भी कोई बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है ब्रोकिंग फर्म को, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो उसमें खूब सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है ब्रोकिंग फर्म को। अब इंक्लूजन्स में अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस, पेज इंडस्ट्रीज, अडानी पावर और एबीबी इंडिया, इन 4 कंपनीज की तो हाई प्रोबेबिलिटी है इंक्लूड होने की, और जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो करीब 21 to 42 मिलियन US डॉलर्स है। बट 2 स्टॉक्स पे खासकर नजर रखिएगा, वो है पेज इंडस्ट्रीज और अडानी पावर, क्योंकि जो इनफ्लोज है वो एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने अगर आप देखेंगे तो करीब 3.1 to 3.6 टाइम्स है। उसके अलावा अडानी विल्मर भी अगर एफएनओ सेगमेंट में आ जाता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड हो सकता है। और ट्रेंट और टीवीएस मोटर, ये 2 स्टॉक है जो बॉर्डर लाइन पे है, बट अभी भी चांसेस कम है इंक्लूजन होने के। अब एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बंधन बैंक, एम्फेसिस, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा जैसे 4 स्टॉक्स है जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है एक्सक्लूड होने की इंडेक्स में से, और आउटफ्लोज जो है वो करीब 14 to 26 मिलियन US डॉलर्स के आसपास हो सकते हैं। बट 2 स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, वो है एम्फेसिस और बायोकॉन, क्योंकि जो आउटफ्लोज है वो अगर एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 to 2.2 टाइम्स है। अब अगर हम निफ्टी 500 स्टॉक्स की बात करें तो उसमें इंक्लूजन्स में नाम आते हैं अडानी पावर, पिरामल एंटरप्राइजेस, पिरामल फार्मा, जिलेट, यूको बैंक, 5 स्टार और मेदांता जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और KIOCL। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं खास खबरों के साथ। जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अगर हम संसद के शीतकालीन सत्र को देखें तो इस बार किन मायनों में यह सत्र खास रहने वाला है? देखिए, आज पहला दिन था। प्रधानमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। यंग एमपीज हैं, उनको मौके देने की जरूरत है। अगर हाउस डिसरप्ट होता है तो जो युवा एमपी चुनकर आए हैं उनको मौका नहीं मिलता है। आज पहले दिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो नए चेयरमैन है वो संभाल कर रखेंगे और सबके हितों का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आज अपोजिशन पार्टीज की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभी अपोजिशन पार्टीज की बैठक की, इस बात की रणनीति पर चर्चा की कि आने वाले दिनों में अपोजिशन किस तरीके से जो प्राइस राइज का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, चीन के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उस मसले को किस तरीके से उठाया जाए, इस मसले पर चर्चा हुई। 3 बजे के करीब में विदेश मंत्री ने एक बयान रखा जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा समय में जो भारत की विदेश नीति होगी वो सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं होगी, बल्कि अब सीधा उसका जो सरोकार है वो आम आदमी से होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भारत की विदेश नीति जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसी हिसाब से उसको तय किया जाएगा। आज के घटनाक्रम इस तरीके से रहे, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि आपने सवाल पूछा कि किस तरीके के ये सेशन रहेगा और इसमें क्या खास रहने वाला है, आर्थिक बिल के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा संभावना इस सेशन में नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार ने जो बिल लिस्ट किए हैं बिजनेस लिस्ट में अगर आप देखें तो 16 नए बिल हैं, 7 पुराने बिल हैं, लेकिन उसमें भी कोई अहम आर्थिक बिल नहीं है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल नहीं है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो बिल है वो नहीं है, आईबीसी में बदलाव से संबंधित जो बिल है वो भी नहीं है। ये सारे जो बिल हैं अभी अलग अलग लेवल पे कंसल्टेशन की प्रक्रिया में है, कैबिनेट की मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। लिहाजा उस लिहाज से तो ज्यादा हैपनिंग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बिल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट से संबंधित बिल है, इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित बिल है। तो आने वाले दिनों में ये इस मोर्चे पर कुछ गतिविधियां दिखेंगी, लेकिन आर्थिक लिहाज से विंटर सेशन जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत जाहिर सी बात है कि निगाहें तो रहेंगी इस शीतकालीन सत्र पर, और इसके साथ ही एक और अहम खबर के सिलसिले में प्रकाश हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। संसद में आज सरकार ने 43 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट और 5G को लेकर भी जानकारी दी। किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है?
संसद में आज जी बिल्कुल, देखिए संसद में आज कई ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिनके क्वेश्चन आंसर का दिन होता है। उसमें रेलवेज मिनिस्ट्री का भी दिन था, साथ ही साथ टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भी दिन था, जिसमें जो सवाल उनसे पूछे गए रेलवे मिनिस्टर से कि आखिर 5G रोल आउट का क्या प्लान है, उसमें किस तरीके से अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, इस पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने एक लिखित बयान में ये कहा कि 50 शहरों तक कंपनियों ने 5G सर्विसेज को पहुंचा दी है, जो जानकारी उनको मिली है, और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। कोई प्राथमिकता नहीं है कि किस शहर में 5G की जो सर्विस है वो कितनी जल्दी पहुंचेगी, इसके बारे में कोई प्राथमिकता नहीं है। जहां जहां कंपनियों को वायबिलिटी लगेगी उस हिसाब से वो ये सर्विसेज पहुंचाएंगी। साथ ही साथ जो मौजूदा हैंडसेट है 4G, जहां पे आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारे हैंडसेट में आप 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सर्विसेज जो हैं कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। जहां तक रेलवेज के रीडेवलपमेंट का सवाल है, स्टेशन की स्मार्ट स्टेशन डेवलप करने की बात है, उस पर रेलवे मंत्री ने ये बयान दिया कि करीब करीब 43 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन पर रीडेवलपमेंट का काम जो है शुरू हो चुका है। कुछ 3 स्टेशन पे काम पूरा भी हो गया है, और जहां जहां जिन रेलवे स्टेशन पे टूरिज्म की फैसिलिटी या उसमें संभावना दिख रही है, उन रेलवे स्टेशन को पहले रीडेवलप किया जा रहा है, PPP मॉडल पे किया जा रहा है। और उन्होंने पूरी तरीके से एक लिस्ट गिनाई जिसमें कौन कौन से शहरों में, किन किन राज्यों में कौन कौन से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। हमारे टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक इसको देख रहे होंगे, जिसमें नई दिल्ली भी है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी है। तो ये तमाम ऐसे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी है, तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसको कि PPP मॉडल पे मल्टी मोड तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। टूरिज्म का भी एक ये अट्रैक्शन होगा, और साथ ही साथ इसके जरिए सरकार इकोनॉमी को भी एक नई रफ्तार देना चाहती है। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर के सिलसिले में हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल खास खबर की ओर बढ़ते हैं। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना बजट में बेहद कम दिख रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। मेघना, क्या जानकारी आपके पास? जी, अगर हम अभी करंट गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो वो 12.5% पर है, और 2.5% एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस भी है, जिसको मिलाकर जो टोटल गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी आती है वो 15% आती है, जो कि काफ़ी हाई है। और इंडस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स जो हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे हैं कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए। उनका मानना है कि स्मगलिंग भी इसी वजह से बढ़ रही है गोल्ड की, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटाते हैं तो उससे स्मगलिंग भी रिड्यूस होने के चांसेस हैं। पर जो सूत्र अब जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई भी रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी के फेवर में नहीं है गोल्ड की, क्योंकि उनका मानना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि ऑलरेडी काफ़ी हाई चल रहा है, और गोल्ड एक मेजर इंपोर्ट आइटम है इंडिया के लिए। तो अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर घटाई जाती है, जिससे कि करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, और बजट में इसका घटाना ऑलमोस्ट अनलाइकली माना जा रहा है। सूत्र भी कंफर्म कर रहे हैं कि स्मगलिंग और इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड की, उसमें जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो कोई रिलेशन नहीं मानते हैं। इनफैक्ट उनका मानना है कि स्मगलिंग जो है गोल्ड की, उसको चेक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए, और मेजर्स से इसको चेक करना चाहिए, ना कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर। उनका ये मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर भी स्मगलिंग में कमी आने की उम्मीद नहीं है, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का रिस्क भी है। इसी को देखते हुए जो सूत्र अभी कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले अब यूनियन बजट में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी पर कोई भी रिडक्शन फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मेघना आपका। और अब ट्रांसमिशन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर। सरकार ने एडिशनल ट्रांसमिशन इंफ्रा प्लान को पेश किया है। इससे 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को हासिल करने में मदद मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, किस तरह से ये बहुत बड़ी संभावना के तौर पर इस प्लान को देखा जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2030 तक सरकार 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट को हासिल करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी तो आप
हासिल कर लेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस अगर नहीं होंगे तो फिर इन रिन्यूएबल एनर्जी को देश के दूर दराज के इलाकों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। लिहाजा इस कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी के हिसाब से, उसी अनुपात में आपको ट्रांसमिशन लाइंस भी बिछाने पड़ेंगे। लिहाजा उसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि कितने एडिशनल ट्रांसमिशन लाइंस के प्रोजेक्ट्स की जरूरत होगी। उसका पूरा खाका आज पावर मिनिस्ट्री ने पेश किया है और ये कहा है कि करीब करीब 8120 सर्किट किलोमीटर हाई वोल्टेज जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स है उसकी जरूरत होगी। इसके अलावा 25,960 सर्किट किलोमीटर जो 765 केवी के जो एसी लाइंस है उसकी जरूरत होगी। हालांकि ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं। इसके अलावा देखें तो कुल मिला के 2,44,000 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की जरूरत होगी अगले 8 सालों में 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के इवैक्यूएशन के लिए। एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसमिशन सेक्टर में इन्वेस्ट होने जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 गीगावाट के जो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2 राज्यों में हैं, उनका इवैक्यूएशन कैसे होगा, उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन की भी जरूरत होगी और उस पर करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो होने जा रहा है। इसकी संभावना बनती हुई दिख रही है। जो इस पूरे प्लान का, इस पूरे रोड मैप का जो तीसरा अहम पहलू है वो है बैटरी स्टोरेज सिस्टम। यानी कि जब रिन्यूएबल एनर्जी दिन के वक्त तो आप पैदा कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कैसे होगी, जब तक स्टोरेज नहीं होगी रात में उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उस पर करीब करीब उसके लिए करीब 52 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम सरकार 2030 तक लगाने जा रही है। उसके लिए टेंडर मंगाए जाएंगे, कंपनियों को ऑर्डर दिए जाएंगे। जाहिर तौर पे यहां भी निवेश की बड़ी संभावना जो है वो दिख रही है। तो कुल मिलाकर 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को हासिल करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने एक खाका पेश किया है जिस पर एक बड़ी रकम जो है वो निवेश करने की योजना जो है वो तैयार की जा चुकी है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। केंद्र सरकार 11 और एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंप सकती है। ये एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को एक तय अवधि के लिए लीज पर दिए जा सकते हैं। क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी, ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर में एक और बड़ा डेवलपमेंट की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 11 और एयरपोर्ट को चिन्हित किया है जिसको बहुत जल्द किराए पे देने के लिए वो कैबिनेट नोट तैयार करके कैबिनेट में लाएगी। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद में वो उसकी बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो जो 11 एयरपोर्ट जिसको प्राइवेट प्लेयर को लीज पे यानी कि किराए पे देने की तैयारी है, इसमें प्रमुख नाम है चेन्नई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, साथ ही साथ इसमें इंदौर, जबलपुर, रायपुर, अमृतसर एयरपोर्ट भी शामिल है। राजकोट एयरपोर्ट का भी नाम है। तो कुल मिलाकर के 11 एयरपोर्ट है जिनको सरकार चिन्हित कर चुकी है और इसको फिलहाल प्राइवेट पार्टी को बिडिंग प्रक्रिया के तहत उसको किराए पर देने की तैयारी है। सरकार को उम्मीद है कि इन 11 एयरपोर्ट के जरिए उनको सीधा अपफ्रंट पेमेंट जो है वो तकरीबन 7 से 8,000 करोड़ रुपए का मिलेगा या इससे ज्यादा की भी उम्मीद है। लेकिन सरकार बहुत कंजर्वेटिव होकर के चल रही है और उसको लगता है कि प्राइवेट पार्टी के आगे आने से एयरपोर्ट के ऑपरेशन में सुधार तो आएगा ही, लेकिन जो सरकार को इससे राजस्व हासिल होगा वो तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपए मिनिमम होगा। और जो पूरी बिडिंग प्रक्रिया है वो लगभग वैसी ही रहेगी जैसे पहले 2019 में 6 एयरपोर्ट को सरकार ने लीज पे जिस तरीके से किराए पे दिया था, लगभग वही फॉर्मूला यहां पर भी अपनाया जाएगा। यानी कि 50 साल के लिए प्राइवेट पार्टी को ये एयरपोर्ट किराए पे दिए जाएंगे जिसके तहत वो एयरपोर्ट के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। जो बिडिंग जीतने का फॉर्मूला होगा वो भी लगभग वैसे ही होगा, यानी कि पर पैसेंजर जो रेवेन्यू फीस होगी और सबसे ज्यादा कौन उसको बिड करेगा उसको ही बिडिंग में जीतने की यहाँ पे प्रबल दावेदारी मिलेगी। तो ये 11 एयरपोर्ट को सरकार ने चिन्हित कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सरकार ने 6 एयरपोर्ट को बिडिंग प्रक्रिया के तहत 50 साल के लिए लीज पे दिया था और वो 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने जीते थे, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट एक बड़ा नाम शामिल था और तब सरकार को उससे 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर इस एक बार फिर 11 एयरपोर्ट के लीज पर देने की तैयारी है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है जिसको जल्दी कैबिनेट में भेजा जाएगा पास होने के लिए और इससे सरकार को लगता है कि एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो वो तेजी से कदम बढ़ा रही है उसमें बड़ी सफलता भी हासिल हो पाएगी। जी बढ़ते आगे। एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में किस बात पर चर्चा हुई, बता रहे हैं समीर दीक्षित।
हाल के समय एयरपोर्ट, खासकर दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट पे जिस तरीके से हवाई मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लंबी कतारों में उन्हें काफी देर तक खड़े रहना पड़ा, इन तमाम शिकायतों को और दिक्कतों को देखने के बाद आज केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अहम बैठक करी, जिसका मकसद यही था कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे मुसाफिरों को जो दिक्कत आ रही है वो दूर की जाए और खामियों को दुरुस्त किया जाए। इस बैठक में एयरपोर्ट ऑपरेटर मौजूद थे और साथ ही साथ कई और अहम स्टेक होल्डर, मसलन CISF यानी कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है, BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक जो दूसरे इसमें अधिकारी मौजूद थे उसमें हैदराबाद और बेंगलोर एयरपोर्ट के CEO भी शामिल थे, मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारी शामिल थे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इमिग्रेशन अधिकारी भी शामिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट के इमिग्रेशन हेड जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक का एजेंडा यही था कि जो शिकायतें आ रही हैं आखिर उसकी मूल वजह क्या है, यानी कि क्यों एयरपोर्ट पे इस तरीके से हवाई मुसाफिरों को बड़ी संख्या में उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको खड़े रहना पड़ रहा है, जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट है वहां पर क्यों लंबी कतारें लग रही हैं। इन तमाम मसलों पर एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये अहम बैठक करी है और जितनी भी दिक्कतें इसको दूर करने के लिए फौरी तौर पे एयरपोर्ट ऑपरेटर को हिदायतें भी दी गई हैं। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर से ये भी कहा गया है कि वो हवाई मुसाफिरों को डीजी यात्रा ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी वो प्रोत्साहित करे और जो जरूरी बंदोबस्त है उसके लिए भी एयरपोर्ट ऑपरेटर को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी में अगर कहीं कुछ मैन पावर की कमी है या अतिरिक्त वहां पर बल की तैनाती करनी है तो वो पहलू भी इस बैठक पे उसमें चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उनकी जो परेशानी है उसको समझने के लिए भी इस बैठक में इस पर चर्चा की गई है। सीनियर सिटीजन को कोई दिक्कत ना आए उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अहम बैठक की गई है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से हाल के समय में दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट पे साफ तौर पे देखा गया कि मुसाफिरों को बड़ी संख्या में वो उनको लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। यहां तक कि कई मुसाफिरों को उनकी फ्लाइट भी छूट गई थी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये अहम बैठक की गई है। अब आश्वासन इस तरीके का निकल के आ रहा है एयरपोर्ट संचालकों की तरफ से कि ये जो दिक्कतें हैं वो दोबारा नहीं होंगी और वो खामियों को दुरुस्त करेंगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। और पर्सनल केयर सेगमेंट में इस समय कैसी डिमांड दिख रही है, इस पर हमारी संवाददाता ऐश्वर्या ने ITC के पर्सनल केयर सेगमेंट के CEO समीर सतपति से बात की। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। FMCG प्रोडक्ट्स में इनपुट कॉस्ट का काफ़ी प्रेशर होता है, तो किस तरह का आउटलुक रहा है आपका 2022 ईयर एंड के लिए और 2023 के लिए? देखिए 22 ईयर जो साल था वो थोड़ा चैलेंजिंग था। एक तो कोविड ख़त्म ही नहीं हुआ था कि इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन काफ़ी हो गया था, बट अभी हम देख रहे हैं कि द इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है। वी होप दैट इट विल स्टे डाउन और जो भी थोड़ा सा कम हुआ है हमने वो कहीं कहीं पे जहाँ प्राइसिंग एडजस्ट करनी है, जहाँ डिस्काउंट एडजस्ट करने थे तो हमने कर लिए हैं कि कंज्यूमर को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर हम अपने कंज्यूमर्स का ख्याल रख सकते हैं तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। मदर्स पर्स जो है ITC ने रिसेंटली एक्वायर किया था, D2C सेगमेंट में आप किस तरह से एक्सपैंड करने के लिए देख रहे हैं? देखिए जो डिजिटल सिस्टम्स हैं आजकल काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं और फ्यूचर हैं। तो अभी हम बहुत कुछ कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली आपको दिखता नहीं है, चाहे हम अपना सप्लाई चेन देखें, चाहे अपना सेल सिस्टम देखें या मार्केटिंग देखें, तो काफ़ी बदलाव आया है वहाँ पे। दूसरा हमने देखा है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक और तरीका हो सकता है उनसे सीखने का कि उनमें इन्वेस्ट करें, उनसे सीखें और वही सीख हम अपने सिस्टम्स में लाएं और उस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव करें कि हम कल के लिए तैयार हों। पर्सनल केयर सेगमेंट में किस तरह का डिमांड आप देख रहे हैं और क्या ट्रेंड कंज्यूमर्स के बीच आपने नोटिस किया है? देखिए पिछले 2 साल से थोड़ा जो ब्यूटी सेगमेंट था वो थोड़ा सा कम चल रहा था, क्योंकि लोग इतना बाहर नहीं जा रहे थे। अब जैसे कि मार्केट खुलते गए हैं, लोग वापस स्कूल कॉलेज काम के लिए वापस गए हैं, तो ये सब कैटेगरीज़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ठीक हो गई है। तो वी एक्सपेक्ट कि ये ग्रोथ थोड़ी सी अभी बढ़ेगी एंड इफ़ वी मैनेज इन्फ्लेशन इन अदर पीसेस वो अभी एक सेकुलर ट्रेंड रहेगा उसका। आखिरी सवाल, मेंस ग्रूमिंग को लेकर क्या आउटलुक है और कंज्यूमर्स के बीच आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं मेंस ग्रूमिंग को लेकर? देखिए मेंस ग्रूमिंग थोड़ा निश सेगमेंट होता था,
अभी हम देख रहे हैं कि जैसे टाइम निकलता जा रहा है, मर्द भी आज के दिन अपने आप पे पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है, और अभी जो डिजिटल जैसे और ई कॉमर्स है, उससे हम इन लोगों को ठीक से सर्विस भी कर सकते हैं। सो पॉपुलर सबसे ज़्यादा क्या है मेंस में एंगेज की परफ्यूम्स बहुत अच्छी चलती हैं, तो वो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है उसमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब बात दिल्ली नगर निगम चुनाव की। तो दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 250 वार्ड्स के लिए मतगणना पूरी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के 134 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि 104 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने बाजी मारी। इसी के साथ कांग्रेस भी 9 सीटों पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें दिल्ली की सफाई, भ्रष्टाचार को दूर करने, पार्क को ठीक करने के साथ कई जिम्मेदारियां दी हैं। वो दिन रात मेहनत करके कोशिश करेंगे कि इस भरोसे को कायम रख सकें। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। और वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद कहा कि दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का बहुमत दिया है। बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। और जीत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो बधाई देना चाहते हैं। चुनाव लड़ते तो नेता हैं, लेकिन जीतती जनता है। साथ ही उन्होंने कल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में देश को कल चमत्कार देखने को मिलेगा। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। वहीं दिल्ली नगर निगम के नतीजों के बाद बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जो एग्जिट पोल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं है, आज वो सारे खारिज हो चुके हैं और उल्टा जनता ने हम पर विश्वास जताया है। जो आम आदमी पार्टी का 2020 में वोट था वो 54% वोट था, आज वो घटकर 42% हो चुका है। इसका मतलब जनता ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार, उनके 8 वर्षों के जो कारनामे रहे, उसके खिलाफ वोट डाला है। और जिस तरह से एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरह से हमने प्रतिक्रियाएं भी सुनाई, हमारी सहयोगी इशिका वर्मा इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रही हैं। आज आम आदमी पार्टी ने जो भाजपा का जो 15 साल का जो एमसीडी में सरकार था उसे आज उन्होंने तोड़ दिया है। अभी जो एमसीडी की जो नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीट्स मिली है, वहीं बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 104 सीट मिली है। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ बीजेपी स्टेट ऑफिस में और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे यहाँ पर जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। आप देखेंगे ना ही यहाँ पर सेलिब्रेशन है, ना ही यहाँ पर सेलिब्रेशन है और ना ही जितने तमाम बड़े बड़े नेता जो सुबह से आ रहे थे वो भी अब जा चुके हैं।
वॉलंटियर्स भी आपको बहुत कम मात्रा में यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन यही हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में सुबह से ही जश्न का माहौल था। हमने देखा कि कैसे वहाँ पर बलून्स भी लगे हुए थे और ये नतीजे आने के बाद जितने तमाम सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हो या फिर गोपाल राय हो, सबका यही कहना था कि आज जो जनता है दिल्ली की, उन्होंने एक ईमानदार सरकार को चुना है। उसी के ऊपर हमने देखा कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कि अगर ये आम आदमी पार्टी सरकार ईमानदार सरकार थी तो ये जरूर बताए कि जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी सीटें थी उन पर आम आदमी पार्टी को हार क्यों दर्ज हुई है। अगर हम बढ़ते आगे, बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 8 साल के मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने दोपहर 3 बजे तक चट्टानों को तोड़कर बोरवेल के करीब 45 फीट गहरा खोद लिया, जिसमें पानी निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद अब बच्चे तक पहुंचने के लिए 7 से 8 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम जारी है। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट कर रही है। वहीं पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर मासूम तन्मय की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। पूरे गांव में लोग पूजा पाठ कर तन्मय की सलामती के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी का नाम एशिया के सबसे बड़े दानदाताओं में शामिल हुआ है। मंगलवार को जारी की गई फोर्ब्स एशिया के परोपकारी हीरोज की लिस्ट में गौतम अडानी का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने इस साल जून में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर 60,000 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया था। इस रकम को अडानी फाउंडेशन के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए अडानी फाउंडेशन ने दान दिया था। अडानी फाउंडेशन पूरे भारत में 37 लाख लोगों की हर साल मदद करती है। वहीं फोर्ब्स के दानवीरों की इस लिस्ट में HCL टेक के शिव नादर और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के अशोक सूटा का भी नाम शामिल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. पुत्र वीर कमाल दिखा अपना। कभी टेबल बन जाता है तो कभी अलमारी। वीर MDF आम प्लाईवुड से ज्यादा मजबूत, ज्यादा किफायती, दिखे चकाचक, टिके टकाटक। इस बटर के साथ तो और भी टेस्टी है। बटर आलू पराठा। जस्ट फॉलोइंग प्रोफेसर चिंटूज इंस्ट्रक्शंस।